students, in the continuation of your class 10, chapter 5, periodic classification of elements, last day we discussed about the early attempts that were made in the process of classification of the elements. Okay, in that part we discussed about two things. That is about the first attempt made was this Dauvergne, and second was that is Newland's octave. Okay. And on the basis of these two things, we came to know that two important things. First was the elements were placed in the increasing order of their atomic masses. Second thing what we discussed, that is the representation of the periodicity, means the representation of the properties after a fixed interval. So taking it into consideration, there was a great scientist named as Dmitri Mendeleev. He started to classify the different known elements into a form of table. It was a very great attempt by Mendeleev that he started to classify the different known elements in the form of table. उन्होंने क्या किया, टेबल प्रिपेयर किया. इसमें कुछ ग्रुप्स थे और कुछ पीरियड्स थे, मतलब कुछ रोज थे और कुछ कॉलम्स थे. जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको उन्होंने कहा कि दीज आर द periods, और जो vertical columns थे उनको उन्होंने कहा these are groups. Okay, so and in this periodic table he started to arrange the different known elements in the order of their atomic masses, in the increasing order of their atomic masses. Okay, so this was a very great attempt that was done by the Mendeleev. Okay. So in this part we discussed about this Mendeleev periodic table, their properties, and some drawbacks were there that we will discuss in that part. So let us start this topic. Table. Mendeleev based. So this was the scientist Mendeleev, and he classified the different elements on the basis of two things. The first thing was that is increasing order of their atomic masses, and second thing was according to their reactivity. So these are some known elements, and he classified them into different groups and periods. Okay, so the first property of this atomic mass and some is chemical reactivity. On this chemical reactivity, he classified into different types of. He formed some formula for the different groups like their oxides, halides. ठीक है, उन दो चीजों के लिए, ऑक्साइड्स के लिए और हैलाइड्स के लिए, हर एक ग्रुप के लिए एक फॉर्मूला भी डेराइव किया, बनाया. इसके बेसिस पे अगर किसी का ऑक्साइड का फॉर्मूला बताया तो हम उसको बता सकते हैं कि वो किस ग्रुप का मेंबर हो सकता है इन दिस Mendeleev periodic table. Okay, so before that he put some law that is known as Mendeleev periodic law. It is known as this Mendeleev periodic law. It is this Mendeleev periodic law. In this module, you will learn about Mendeleev's periodic table. It was stated in this Mendeleev periodic law. See what he did. He stated its Mendeleev periodic law. We discussed that these two things are important. The first thing is that about their properties, that is increasing order of this atomic mass. He placed the different known elements in the increasing order of this atomic mass, where into different groups and periods. And he saw that the different elements that were placed in the different groups and periods, they were showing this property of periodicity.
periodicity. And on the basis of that, he made a periodic law. What is periodic law? It is very important. Many times it is asked. He state the Mendeleev's periodic law. तो listen it carefully. उन्होंने क्या बताया? इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर उन्होंने एक लॉ डिराइव किया, जिसको हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. उन्होंने क्या कहा कि all the properties of elements are periodic function. Periodic function मतलब यही periodicity. Periodic function किसके? Of their atomic masses. All the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. This is known as Mendeleev's periodic law. ठीक है, इसी को Mendeleev's periodic law कहते हैं कि all the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. मतलब कि अगर हम उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो एक साथ पढ़ने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? रिपीटेशन होगी, उनकी प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर. दिस इज इन अदर टर्म्स इट इज नोन एज मेंडल्स पीरियोडिक लॉ. इसको याद कर लेना बेटा. व्हाट इज मेंडल्स पीरियोडिक लॉ? ऑल द प्रॉपर्टीज आइदर फिजिकल और केमिकल आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses. This is called Mendel's periodic law. Okay, so this is the Mendel's periodic law. See, it is this Mendel's periodic law. The physical and chemical properties of all elements are the periodic function of their atomic masses. Of their atomic masses means, why again, periodic function of their atomic mass means this thing is important. Atomic masses. मतलब they are representing the periodicity. They are representing the periodicity. कब? जब हम क्या कर रहे हैं? उनको increasing order of their atomic mass के फॉर्म में हम उसको अरेंज करते हैं. ठीक है? So on the basis of that we made a periodic table. Okay? उस समय 63 elements that they were known and here in the form of a periodic table. Here in these different known elements in the form of periodic table. So this is the Mendeleev's periodic table. See, there are groups and there are periods. Group, it is group 1, group 2, group 3, group 4, 5, 6, 7 and 8. So what is the total number of group? Total number of group in the Mendeleev's periodic table was, it is 8. 8 groups. ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए, उनको क्लासिफाई करने के लिए एक पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट किया and he divided the different known elements in these groups. These are the groups. First, second, it is the third, it is the fourth, fifth, 6, 7 and it is the 8th group. एक चीज और देख रहे होगे आप इसमें, कि हर एक ग्रुप में एक सब ग्रुप भी है. ठीक है, हर एक ग्रुप में एक सब ग्रुप भी है. See here, it is group A, B. First में A और B, second में A और B, third में A और B, 7th तक it is divided into A and B. और हर A, B में दो एलिमेंट्स को रख सकते हैं. और in the last it is divided into 3. ठीक है, तो 8 ग्रुप में डिवाइड किया और फिर वो सब ग्रुप्स में डिवाइड किए. इसको ऊपर से नीचे जो वर्टिकल कॉलम्स थे उन्होंने क्या कहा? इसको ग्रुप कहा. और जो कंसेंट्रिकल रोज थी ये वाली, these are the periods. These are the periods. ये periods कहलाएंगे. इधर से इधर वाली लाइन ये periods है. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही चीज है. It is the period. So he and there were 6 periods in the Mendeleev's periodic table. Okay, periodic table में 6 periods थे. Okay, तो उन्होंने टोटल 8 ग्रुप्स और 6 periods में डिफरेंट नोन 63 एलिमेंट्स उस समय नोन थे. He divided it into 8 groups and 6 periods. Okay, so
उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया उन पीरियोडिक फॉर्म में। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या किया, उनकी कुछ मेरिट्स उनके पीरियोडिक टेबल की, ओके, कि पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, उसमें से जो पहली प्रॉपर्टीज थी कि मेंडल ने कुछ जगह छोड़ रखी थी अपने पीरियोडिक टेबल में, किसके लिए, द एलिमेंट्स दैट वाज अननोन एट दैट टाइम, दैट वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, मींस फॉर द फ्यूचर एलिमेंट्स, लाइक 3 प्लेसेस ही लेफ्ट, और उन्होंने एक वर्ड दिया, उसको नाम दिया एका। एका मींस दैट इज फ्यूचर एलिमेंट्स, इट इज derived from the Sanskrit word that is eka. Eka means that is prior, पहले, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि 3 एलिमेंट्स उन्होंने था, इट इज एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। और ये क्या थे, ये अननोन या अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उस मेंडलीव के समय में। लेकिन क्या हुआ जब ये, और उन्होंने दूसरी चीज क्या की कि उन सारे एलिमेंट्स की उन्होंने प्रॉपर्टी भी प्रेडिक्ट कर रखी थी कि जब इस जगह पे जब एलिमेंट कोई डिस्कवर होगा तो उसकी ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी। और लेटर ऑन व्हेन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, सो प्रॉपर्टीज वाज एट द सेम, मोर और लेस इट वाज द सेम दैट मेंडलीव हैज प्रेडिक्टेड। और जो एलिमेंट्स थे, एका बोरॉन वाज स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम वाज गैलियम एंड एका सिलिकॉन वाज जर्मेनियम, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टी भी इट वाज द सेम, सिमिलर दैट मेंडलीव हैड प्रेडिक्टेड। सो इट वाज वन ऑफ द वेरी ग्रेट डिस्कवरी ऑफ दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन्होंने फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए कुछ प्लेसेस वहां पे छोड़ रखे थे, ठीक है। दूसरी चीज पीरियोडिसिटी, जो भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, इट वाज सिमिलर, दैट इज द पीरियोडिसिटी वाज देयर। तीसरी चीज कि उन्होंने जो प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी वो भी क्या था, जो अननोन एलिमेंट्स थे, दिस वाज आल्सो करेक्ट। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग थी कि अभी हमने देखा कि उसमें 8 ग्रुप्स थे उनके पीरियोडिक टेबल में, और जब उस समय नोबल गैसेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, दे वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। लेकिन उनके पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस थे वो जब डिस्कवर हुए तो बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए सबसे लास्ट में जाके वहां पे वो एडजस्ट हो गए। सो इट वाज आल्सो अ ग्रेट डिस्कवरी, ग्रेट प्रॉपर्टी ऑफ दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ओके। तो कुछ बातें हमको इस पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखनी है। पहली चीज, मेंडलीव ने जो अरेंजमेंट किया था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के फॉर्म में उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। दूसरी चीज जो अरेंज किया उन्होंने उसको, वो क्या था कि पीरियोडिक लॉ बताया कि ऑल द प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसके बाद उन्होंने एक टेबल बनाया जिसमें he has divided it into 8 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows known as 6 horizontal rows known as periods, ओके। ग्रुप्स एंड पीरियड्स में उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया और उसी पीरियोडिक टेबल में उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। उसके बाद उस अरेंजमेंट के बाद उन्होंने बताया कि ये जो एलिमेंट्स हैं उनकी, उनमें क्या है, पीरियोडिसिटी है। उसके बाद उन्होंने कुछ जगह छोड़ रखी थी जो अननोन एलिमेंट्स थे, उसमें डिस्कवर नहीं थे, ठीक है। इस तरह से 3 एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, दैट वाज दिस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ओके। और उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट की थी, जो भी मोर और लेस इट वाज करेक्ट। और नोबल गैसेस के लिए प्लेसेस छोड़ रखा था जो बाद में डिस्कवर हुए और बिना किसी एलिमेंट को डिस्कवर हुए क्या हुए, उस पीरियोडिक टेबल में वो एडजस्ट हो गए। तो दिस वाज द मेरिट ऑफ दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बट apart from that there was some drawbacks of this Mendeleev periodic table. What was that? This was the place of the hydrogen. हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में भी रखा जा सकता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो मेटल्स हैं उनके साथ भी रिजेंबल करती है, और इसको हम हेलोजन्स के साथ भी रख सकते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी उस हेलोजन के साथ भी रिजेंबल करती है, ठीक है। तो एक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इट वाज द ड्रॉबैक ऑफ द Mendeleev periodic table because it has not got the proper place in this periodic table.
चीज थी प्लेसेस ऑफ दिस आइसोटोप। आइसोटोप हमको पता है कि दोज हु आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो हमको पता है कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था इट वाज बेस्ड ऑन दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हुए जो क्या हुए, आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। तो एक ही साथ सारे लोग को अरेंज करना, उनको अलग अलग अरेंज कर दिया गया था बिकॉज देयर वेयर आइसोटोप्स और उनका मास अलग अलग था। तो आइसोटोप्स की प्रॉब्लम का, अरेंजमेंट का प्रॉब्लम था उनके पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को पास रख दिया गया था जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, आपस में मैच नहीं करती थी, टू एडजस्ट द डिफरेंट एलिमेंट्स इन दिस पीरियोडिक टेबल। एंड लास्ट वाज दैट इज द सम, जो कॉमन प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे वो अलग अलग हो गए थे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के। इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल और इसको आपको रिवाइज करना है प्रॉपर्ली बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, in our next video class we will discuss about the modern periodic table, their properties and periodic trends in the periodic table. Okay students, thank you.